Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, let's start the lesson number 3. In lesson number 3, we have studied about the atmospheric pressure. Now, see on page number 18, use your brain power. From here, I have to start. Dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into water in a white container. What do you observe? So what is asked here? Dip an uncorked inverted empty bottle in slanting position. आपको dip करना uncorked inverted empty bottle. Uncorked means without lid. An empty bottle in slanting position. Slanting position means yes, like this. This position is slanting position. थोड़ा सा तिरछा. Okay, and if exactly 90 डिग्री जो अगर फॉर्म करेगा उस वाटर के सरफेस पे देन इट विल बी वर्टिकल. तो हियर इन स्लैंटिंग पोजीशन एंड वाइड कंटेनर. तो सी इट इज गिवन ओवर हियर इन फिगर 3.5. दिस इज द बॉटल विच इज अनकॉक्ड जिसमें जो है कोई भी लिड नहीं लगा है और स्लैंटिंग पोजीशन में उसको क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल सी दैट द बबल्स ऑफ एयर, बबल्स दिखाई देगा आपको एयर के. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी dip in slanting position, the water is heavier than air. It entered the bottle and the air present in that empty bottles comes out. तो जो उसके अंदर जो हवा भरी रहती है वो बाहर आती है. तो in this way the water displaces the air. That's why we see the bubbles of the air inside that container. Second, what changes takes place in the balloon on filling air in it? So that balloon inflate when you fill the air in the balloon. तो that inflate वो क्या होता है, swell होता है. If we come to know from the activities above that air has properties like occupying space. और इससे हम लोगों को क्या समझ में आया इस एक्टिविटी से कि जो एयर है that also occupy the space, because when we dip the empty bottle vertically, so then the air cannot comes out from that bottle. That's why the water does not enter into the bottle. But when we keep the in slanting position, then the water displaces the air. That's why there are formation of the air bubble. Air is a mixture of very fine particles of the some gases, dust, smoke and moisture. When rays of light fall on these minute particles, the particles spread the light in all directions. This natural phenomenon is called scattering of light. We know that air is the mixture of gases. It is made up of nitrogen, 78% nitrogen, 21% oxygen and from 1% of other gases. And these other gases includes the water vapor, carbon dioxide, methane, helium, neon, argon, radon, etc. And it also contains the smoke, dust, etc. And when the ray of light fall on these minute particle, the particles spread the light into all direction. और जब इनके इस small particle of the molecule of the gases like oxygen, like nitrogen, when the light fall on these small particles, the light gets scattered, and this phenomenon is called scattering of light. Now, because of scattering of light only the sky appear blue. जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों को स्काई ब्लू दिखाई देती है. बट इन द डार्क, इन द नाइट, स्काई अपीयर डार्क. जो नाइट टाइम है इट लुक ब्लू इन कलर इन द डे टाइम, but it look dark in the night. So what happens exactly here? During the daytime there is no sunlight, that's why the scattering
do not takes place, and because of that sky appear dark in night. But in the daytime, because of presence of sunlight, the blue light get scattered when falls on these small particle, and hence sky appear blue in color. And when we go in space, then we see that the sky is dark in color, because in space there is no atmosphere, क्योंकि वहाँ एक एटमॉस्फेयर नहीं होता है, and there are less other types of the particles, and because of scattering of blue light do not takes place, and hence the sky appears dark. तो वहाँ पे हम लोगों को कैसे दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है. Now temperature regulation. नेक्स्ट पार्ट क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर रेगुलेशन. द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन. each and everyone knows that the main source of energy is sun, so that our earth also receive energy from the sun. This energy is reflected by the earth in the form of heat. So during daytime, when there is sun, then the heat is absorbed by the earth, which is emitted by the sun. But during night time, there is emission of the absorbed heat from the earth surface. लेकिन रात में क्या होता है? जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं अर्थ, जो अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी थिंग्स हैं, लाइक सैंड, वाटर, दे एमिट द heat in the form of radiation. The constituent of air surrounding the earth, such as water vapor, carbon dioxide, absorbs a part of this heat and give it to the other constituent of air. As a result, earth's surface remain warm and thereby becomes suitable for living world on the earth. If there were no air on the earth, the average temperature on earth's surface would have been very low. We know that the methane, carbon dioxide, water vapor are called as the greenhouse gases, and the main function of greenhouse gases are to trap the sun's heat. And we know that the average temperature of the atmosphere remains about 28, 26, 27, 30 degrees Celsius. And we also know that we unable to survive at 0 degree Celsius to 3 degree Celsius, because about the 2-3 degree Celsius we feel cold, तो हम लोगों को ठंडी फील होती है. एंड ऑल्सो वी कैन नॉट सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर, और हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते. तो बिकॉज ऑफ दीज गैसेस द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर does not falls to zero or very close to zero, because these gases which are present in atmosphere trap the sun's heat. Only the some amount of the heat is emitted and goes in the universe, वो यूनिवर्स में चले जाता है. और जो दूसरे जो कुछ क्वांटिटी, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ है, वो ये गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये जो है क्या करती है? ट्रैप करके रखती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग थिंग्स बिकम पॉसिबल ऑन द अर्थ. इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल है, अदरवाइज नाइट विल बी टू कोल्ड. नाइट क्या होगा? बहुत ही ठंडा होगा. एंड डे विल बी वेरी हॉट. द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड. तो हियर who helps in the regulation of temperature of atmosphere? The atmospheric gases, they regulate the temperature of the atmosphere. Now transmission of the sound. Okay, transmission of the sound. All the sound that we hear reach us through the surrounding air. जो sound हम सुनते हैं, वो साउंड सराउंडिंग एयर से वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता है. इफ वैक्यूम इज क्रिएटेड, अगर हम क्या करते हैं? वैक्यूम क्रिएट करते हैं, देन द साउंड विल नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो ट्रेवल नहीं होगी. द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर.
और जो डेंसिटी है एयर की वो भी टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। The density is more when the temperature is low and density is low when the temperature is high. In winter, the density of air increases. जो डेंसिटी है विंटर सीजन में, जो ठंडी के सीजन में वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज दैट एयर इज सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर उसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। वी कैन हियर द विस्टल ऑफ डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन मॉर्निंग इन विंटर। अब हमको जो है ट्रेन की जो विस्टल होती है, जो उसकी सीटी होती है, उस सीटी की आवाज़ दूर से सुनाई देती है क्लियरली, वो भी विंटर सीजन में। बट समर सीजन में उतनी क्लियरली सुनाई नहीं देती है। एयर इज यूजफुल एज ए मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड। तो क्या है इसका यूज एटमॉस्फेरिक गैसेस का? इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड, साउंड के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। एटमॉस्फेयर और क्या फंक्शंस करती है? जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वो भी मेंटेन करती, कंट्रोल करती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अर्लियर व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट इज वी हैव स्टडीड अबाउट द एटमॉस्फेरिक गैसेस, दैट इज एयर। एयर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो एयर के क्या क्या यूजेस हैं? तो एयर किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका क्या क्या यूज है? तो जो एयर है, एयर क्या करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करती है। दूसरा जो है एयर जो है वो रेगुलेशन करती है टेम्परेचर का। एयर जो है वो क्या करती है? साउंड को ट्रांसफ़र करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। यस, व्हाट हैपेंड सॉरी, properties of water. Okay, first question, let's recall. What are the states in which the water is found? What are the states in which the water is found? So on earth the water is found in three different states. And what are that three states? Solid state. In solid state the ice is present. In the liquid state the water vapor is liquid water is present. And in gaseous state the water vapor is found in the atmosphere. So it is present in the all three states. What inference will you draw from the picture alongside? क्या inferences आप ड्रॉ करोगे alongside figure से? तो now see the figure, first one. Now here the water is filled. वाटर क्या किया है? फिल किया हुआ है। और बलून में या रबर के जो है उसमें जो बलून शेप का जो स्ट्रक्चर है। नाउ व्हेन इट इज प्रेस्ड इट हैव मेनी होल, एंड व्हेन इट इज प्रेस्ड देन द waters which comes out in the form of jet fall at equal distance from that ball. It means the pressures applied by the water is equal in all direction। जो वाटर के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। नाउ सी द सेकेंड वन। इन सेकेंड द होल्स आर मेड एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट कंटेनर। उस कंटेनर के डिफरेंट लेवल पे क्या किया है? होल बनाया हुआ है। द water which comes out from the hole of the container at base falls farthest from that container, and the hole from made at the top. The jet of water comes out and falls closest to the that container, and middle one it fall in between the first and third one. It means the pressure of the water in the container in which it is placed is high at the bottom। इसका मतलब क्या है? अगर हम वाटर को किसी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर के बेस में वाटर का प्रेशर हाई होता है, एंड एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन द प्रेशर रिड्यूसेस। तो प्रेशर क्या होता है? कम होते जाता है, कम से कम होते जाता है। Okay, now see the third figure. You might have used a pipe to remove the water, to draw the water from the drum. Okay,
एंड फ्रॉम ड्रम टू बकेट और टब, ड्रम से या उसमें से क्या करते हैं उसके लिए, फर्स्ट यू इंसर्ट द पाइप इन द ड्रम एंड द लेवल ऑफ वाटर इन द ड्रम इज हाई एंड you keep the bucket below of that drum, and when you pull the water using mouth, then water start coming from the drum. तो क्या हो जाता है, उस ड्रम से वाटर स्टार्ट हो जाता है आना, उसमें गिरना चालू हो जाता है. दिस हैपन बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इन द वाटर विच आर स्टोर्ड इन द drum have the high potential than the other end of the that pipe which is inserted in the bucket. So that's why the water flow from the high potential to the lower potential. जो low potential है वहाँ से lower potential की तरफ वो flow होता है. What inferences you will draw from the picture alongside? क्या आप इससे inferences draw करते हो? That the pressure at the bottom is high and the pressure at the upper end will be low. Now water occurs in the liquid state under the ordinary condition. Water is a fluid substance. जो water है ordinary temperature पे वो liquid state में मिलता है and it is fluid substance. Fluid means the flowing substance. The water does not have its own shape but it has a volume. Water का एक fixed shape नहीं है. It takes the shape of the container in which it is kept. जिस कंटेनर में इसको रख देते हैं उसी कंटेनर का शेप ये गेन कर लेता है. बट इट हैज़ अ वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम. It can pass through the small holes or seep through very small gaps or crack. अब जो इसके molecules है they are so small that they can pass through the small holes और seep through very small gap. और जो एकदम से छोटा सा गैप होगा या क्रैक होगा उससे भी ये क्या हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं, सीप हो सकते हैं, वन साइड से दूसरी साइड क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं. ऑन पोरिंग वाटर इन एन ऑयल cladded dish, water does not spread but form the small round drops. Why does this happen? What is mentioned here? On pouring water in an oil cladded dish. अगर हम ऑयल क्लेडेड डिश में वाटर को पोर करते हैं, मतलब कि अगर एक डिश लेते हैं उसके डिश में ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है एंड व्हेन वी पोर द वाटर इन इट द वाटर डज नॉट स्प्रेड, तो वाटर उसमें डिजॉल्व नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता, बट फॉर्म द स्मॉल राउंडेड ड्रॉप्स, लेकिन वो स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है. व्हाई डज दिस हैपन? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वाटर और जो है ऑयल, वाटर एंड ऑयल दे डू नॉट गेट मिक्सड, वो मिक्स नहीं होते एंड they form the heterogeneous solution. तो to reduce the surface tension को रिलीज करने के लिए it get converted into the water drops, उस water drop में convert हो जाता है. Try this. Take a plastic bottle more than half full of the water. अब क्या बोला है? टेक प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल लेना है, मोर देन हाफ फुल ऑफ द वाटर, जो हाफ से भी ज़्यादा भरा हो वाटर से. मार्क द वाटर लेवल ऑन द बॉटल, वाटर बॉटल को क्या करना, मार्क करना उसके लेवल को. कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रीजर फॉर द मेकिंग आइस. अब उस फ्रीजर में उसको क्या करना है, रख देना है आइस फॉर्म होने के लिए. ओपन द फ्रीजर आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स एंड ऑब्जर्व, और उसके बाद क्या करना है, कुछ घंटों के बाद उसको फ्रीजर से निकालना है एंड ऑब्जर्व करना है. यू विल सी दैट द वाटर हैज चेंज इनटू आइस. अब आपको क्या दिखाई देगा, व्हाट यू विल सी दैट द वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू द आइस. एंड सेकेंड थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व दैट द मार्क लेवल, ओके, दैट विल बी क्रॉस्ड बाय दैट आइस. जो मार्किंग किया होगा वाटर का लेवल उससे भी क्या होगा, उसको क्रॉस कर देगा जब आइस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. नोट द लेवल ऑफ आइस. यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज हायर दैन वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग. तो आपको क्या इससे कंक्लूजन निकलेगा कि जो आइस का लेवल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग, फ्रीज होने के पहले जो लेवल था. व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? इससे आपको क्या इन्फ्रेंस मिलता है? मीन्स व्हेन द वाटर सॉलिडिफाइड
जब वाटर सॉलिडिफाई होता है दैट टाइम, जब वो सॉलिडिफाइड होता है तो उस टाइम जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। एज वाटर फ्रीजेज टू फॉर्म आइस, जैसे वाटर फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट होता है, इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो वो एक्सपांड होता है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीजेज। तो on freezing how much was increase in volume of water, in what proportion did it increase। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, किस प्रोपोर्शन में जो वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है और उसका किस प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज हुआ है। टेक ए बकेट ऑफ वाटर, अब दूसरी एक्टिविटी आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक बकेट ऑफ वाटर, एक बकेट में वाटर लेना है, एक फुल बाल्टी पानी लेनी है। ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इट, अब उसके अंदर अलग अलग टाइप के थिंग्स डालने हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पून है, यहाँ पे राउंडर है, इरेज़र है, पेंसिल है और शार्पनर है, स्केल है। तो ये चीज़ों को क्या करना है, उस बकेट फुल ऑफ वाटर में हम लोगों को ड्रॉप करना है। Make separate list of the article which sink in the water and those that float on it। और अब हम लोगों को क्या करना है, दो सेपरेट लिस्ट फॉर्म करनी है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो उस पर फ्लोट होते हैं उनकी एक लिस्ट, और जो ऐसे जो क्या है सिंक हो जाते, डूब जाते वाटर में। टेक सम वाटर इन पॉट एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट। अब क्या करो, टेक सम वाटर इन पॉट, किसी पॉट में, किसी बर्तन में थोड़ा सा वाटर लेना है, एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस एज शोन इन फिगर 3.7, जैसे फिगर 3.7 में शो किया है। हियर द वाटर इज टेकन इन द ग्लास, ग्लास में वाटर लिया है, टम्बलर में वाटर लिया है, एंड द आइस क्यूब्स आर ice tubes are kept in the water। so what you are observing, the ice pieces are floating और ice cubes are floating on water, ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है। what do you see, the ice float on water, ice is lighter than water, when water freezes to form the ice it become lighter than the original liquid। जब वाटर जो है फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है ओरिजिनल लिक्विड के कंपेयर में। when water freezes, that is when it transform into the solid state, its volume increases। जब जो है वाटर फ्रीज होता है तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर, इसलिए जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से लेस होती है। दैट इज़ वाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर, इसकी वजह से आइस जो है फ्लोट होती है वाटर पे। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर, the interrelation between the volume and mass of a substance, interrelation between the volume and mass of substance, the space occupied by the substance in its volume is its volume। स्पेस में जो सब्सटेंस जितनी भी जगह कवर करता है, घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दो बॉक्स लाया, ओके, तो दो बॉक्स लाया तो क्या हो जाएगा, वो अगर फ्लोर पे आप रख रहे हो, क्या है, दो बॉक्सेस है और फ्लोर पे रख रहे हो, तो क्या होगा, इस फ्लोर पे वो नीचे जो टाइल्स होगा, टाइल्स का कुछ एरिया कवर करेगा। उसके बाद में जो है ऊपर के तरफ, ऊपर के साइड में एरिया कवर करेगा, और जो है ब्रेड्थ वाइज भी क्या करेगा, वो एरिया कवर करेगा। तो ऑल थ्री डायरेक्शन में वो एरिया कवर करेगा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है स्पेस में, उसी को उसका हम बोलते हैं वॉल्यूम। द स्टोर ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज इट्स मास, और उस सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। और मास को हम क्या करते हैं, वेट में मेजर करते हैं, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg एट्सेट्रा। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सपोज अगर क्या है वॉल्यूम, सपोज एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में क्या है, उसका वॉल्यूम
100 cm³ है और उसका मास अगर क्या है 10 ग्राम है, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द इट्स डेंसिटी। मास इज मेजर इन द ग्राम्स एंड वॉल्यूम इन द क्यूबिक सेंटीमीटर। जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम ऑफ मेजरिंग, तो इन CGS सिस्टम द मास इज मेजर इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज मेजर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम अपॉन पर सीसी, सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, फर्स्ट सी फॉर द सेंटीमीटर and second C for the cubic. First one for the cubic and second is for centimeter. Hence gram G upon cc is the unit of density. If the mass of 1 liter of water is 1 kilogram, then what is the density of water? अगर बोला है कि मास 1 किलो लीटर वाटर का 1 किलोग्राम है, तो उसका डेंसिटी वाटर का कितना होगा। तो मास कितना बताया है, 1 लीटर वाटर का 1 किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा, जब 1 किलोग्राम में अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम अपॉन 1000 सी सी। ओके, बिकॉज 1 लीटर में कितना होगा, 1000 सीसी होगा, और 1 किलोग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो 1 किलोग्राम पर लीटर हो जाएगा वो। एनोमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एनोमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है। नाउ ऑब्जर्व द फिगर 3.8 एनोमलिस बिहेवियर। ऑब्जर्व द फिगर 3.8। okay, now see here the temperature at base is 4 degrees Celsius, then the temperature is 3 degrees Celsius, then 2 degrees Celsius, then 1 degree Celsius, and here 0 degree Celsius. Now see the here 10 degree Celsius, this is the टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये किसका टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का। नाउ द टेम्परेचर फॉल्स टू 1 डिग्री 1 degree Celsius, here 0 degree Celsius, here 1 2 3 4। so what is the anomalous behavior of water? Now you know that when any substance is heated, the volume increases। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या है आपको याद रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड, जब सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड इफ द सब्सटेंस इज कूल डाउन, जब उसको हम कूल डाउन करते हैं, द वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बट इट इज डिफरेंट इन द केस ऑफ वाटर अप टू द 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बिहेवियर वाटर में अदर सब्सटेंस के कंपेयर में डिफरेंट है। अब वो क्या डिफरेंट है, तो व्हेन वी हीट द water from 0 degree to 4 degree Celsius, instead of increasing the volume, its volume decreases, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने के बदले में उसकी जगह पे डिक्रीज होता है। whenever when the other substance are heated, correspondingly their volume increases, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है हम लोगों को कि वाटर की वॉल्यूम डिक्रीज होती है। After the 4 degree Celsius, when the water attain the 4 degree Celsius and increases, then after the 4 degree Celsius again its volume is start increasing, instead of decreasing it is start decreasing, and this behavior of water is called the anomalous behavior of water। anomalous का मतलब क्या है, एक डिफरेंट, विचित्र, एंटिक। तो एंटिक जो है बिहेवियर वाटर का क्या है कि अदर सब्सटेंस के कंपेयर में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन उसका जो है वॉल्यूम
डिक्रीज होता है इंक्रीज होने की जगह पे। और इस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, दे सर्वाइव इवन इन द विंटर सीजन, वो विंटर सीजन में भी जिंदा रहते हैं। अब आपको मालूम है व्हाट हैपेंस इन द विंटर सीजन, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉल्स स्लोली स्लोली। जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता है। सपोज अब क्या है, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एट दैट टाइम 20 डिग्री सेल्सियस है। नाउ जब उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 20 डिग्री है तो क्या होगा, 20 से 19 हुआ, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11. In these cases, the water become heavier because we know that when the substance cool down, the density increases, and when density increases, it become heavier. वो heavier हो जाता है. तो same things happen with the water also. Suppose I have taken the initial temperature 20 degree Celsius, तो जो 20 डिग्री से 19 हुआ, 19 से 18 हुआ, तो वाटर क्या हो जाता है, थिक होते जाता है, डेंस होते जाता है। और डेंस होने की वजह से क्या है, वो हेवियर होता है, और हेवियर होकर वो क्या होता है, सेटल्ड होता है उस वाटर के बॉटम में, उस जो पॉन्ड्स है या रिवर है उसके बॉटम में वो सेटल्ड होते जाता है। एंड व्हेन इट रीचेस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, जब तक वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच नहीं जाता तब तक वो क्या होता है, हेवियर होता है, और हेवियर होकर क्या हो जाता है, वो बॉटम में सेटल होते जाता है। बट व्हेन द टेम्परेचर बिकम 4 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, नाउ द वाटर स्टार्ट एक्सपांडिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह वो क्या होता है, एक्सपांड होना चालू हो जाता है। एंड दिस कंटिन्यूज बिलो द 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे। नाउ जो वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस जो नीचे का टेम्परेचर हो गया, तो नीचे का टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो एक्सपांड होता है, तो ऊपर के वाटर के लेवल का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। क्या होता है, डाउन, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बट डेंसिटी जो है नीचे वाले वाटर की हाइयर होती है। इसकी वजह से जो आइस फॉर्म होते हैं वो ऊपर ही फ्लोट होते हैं, और नीचे का जो क्या है वाटर, वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द वाटर इज रिमेन सेफ। इसकी वजह से वो सेफ रहते हैं, इसी को हम एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड इट। Usually when temperature of substance is lower, its density increases and volume decreases. But water is exception to this rule. Keep a glass full of water in the freezer to 5 to 10 minutes, then take it out and observe it carefully. From which part in the glass does the water first start freezing? The density of water is peculiar. When water when water at the normal temperature start cooling, its density increases like that of the most liquid. जब उसको कूल करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर से, तो दूसरे जो लिक्विड है उसकी ही तरह ये भी अपनी डेंसिटी इंक्रीज करता है। हाउएवर, इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इट डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेकिन जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, उसके नीचे पहुंचता है, इसका डेंसिटी डिक्रीज होना चालू हो जाता है, हल्का हो जाता है नीचे का वाटर। दिस मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस होती है। If the temperature of water is lower below 4 degree, density decreases and volume increases, और उसके बाद उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। It means that water expand when the temperature fall below 4 degree Celsius। इसका मतलब जो है वाटर एक्सपांड होता है जब टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे चले जाता है। दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी को हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। इसकी वजह से जो है ऊपर इस रिजर्वायर के आइस फॉर्म हो जाता है, बट नीचे आइस का फॉर्मेशन होता नहीं है, लिक्विड वाटर प्रेजेंट रहता है, और इसमें जो है जो लिविंग थिंग्स है वो सेफ रहते हैं। इट्स क्लियर नाउ? क्लियर हो गया स्टूडेंट?
Now unmute yourself, and if you have any doubt, ask to me, then I will end the meeting. Is anybody having any doubt? Tell me, student. Tahir Ansari, Subhan, Ayan, Shahid, Siddiqui, Nadeem, do you have any doubt? Okay, now I am ending the meeting.